A very good morning, students. Today we are going to start with the third chapter of economics, that is poverty as a challenge. Beta, before starting with the challenge, this chapter, I want to tell you that after finishing this chapter, now we are going to complete our economics textbook. Basically, our economic textbooks is having 4 chapters, na beta, but as we all know that our government this time, because of government has cut or reduced our 30% syllabus. So in that 30% syllabus, our last chapter is removed. So accordingly that we have finished 2 chapters already in April month. Now I am going to take third chapter, poverty as a challenge. Very interesting or simple topic. So watch the link carefully. Now let us start with the poverty. So beta, when we talk about poverty, what comes in our mind? Poverty means poor peoples comes in our mind. एक गरीबी अपन कह सकते हैं. Poverty comes derived from the word poor. Poor means गरीब लोग. So when we talk of poverty now, so what comes in our mind? In our mind comes that picture of different peoples. What kind of people? If we talk about urban areas in cities, those children who work in a tea stalls, child laborers, those workers who work in the construction sites, the ladies who work as a maids in the houses. So these pictures of urban areas comes in our mind. Beggars, ठीक है, जो भिखारी लोग हैं उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में आती है. एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, तो गांवों में ऐसे लोग जिनकी खुद की जमीनें नहीं हैं, हु आर लैंडलेस लेबरर्स, पुअर पीपल्स, दैट पिक्चर कम्स इन आवर माइंड. तो पॉवर्टी की बात करते ही जो हमारा माइंड है एक आइडिया क्रिएट कर लेता है, एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है उन गरीब लोगों की जिनको अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं. तो दे आर लैंडलेस, पुअर पीपल्स, पुअर लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर्स, बेगर्स, child laborers, all these pictures comes in our mind. Now let us move further. So basically for explaining the poverty to you people, now in our book 2 examples are given. One example at rural context and other example at urban area. Rural area village level पे, urban area cities का एक example दे रखा है कि किस तरीके के गरीब लोग जो है poor peoples used to reside in these areas. So first we are going to take the case of urban area. Because in your book urban area is given, तो urban area में एग्जाम्पल दे रखा है राम सरन का, who is 33 years old man and used to work in a flour mill. मतलब आटा पीसता है ना, उस मिल में, उस फैक्ट्री में वर्क करता है. और अगर उसे डे टू डे डेली वर्क मिल जाता है तो he used to earn only 1500 per month. वो भी तब अर्न करता है जब उसको रोज काम मिल रहा है, तो उससे वो अर्न कर रहा है 1500 per month. He is having 6 peoples in his family. मतलब वो, उसकी वाइफ और 4 बच्चे. अब 4 बच्चे किस उम्र के? From 12 to 6 months. बड़ा बच्चा जो 12 years का है, सॉरी, और छोटा बच्चा है जो 6 months का. और इन बिटवीन 2 बच्चे और है, 10 year old उसकी डॉटर है और एक बच्चा और है. तो 6 peoples की फैमिली है. He used to earn 1500. अब जो है उसके विलेज में जो है पेरेंट्स भी रहते हैं. उसके जो फादर है वो लैंडलेस लेबर है, उनकी खुद की जमीन नहीं है, डे टू डे उनको वर्क नहीं मिलता है. तो उसको जो है अर्न करके जो है पेरेंट्स में, जो विलेज में जो पेरेंट्स रह रहे हैं ना, उनको भी अमाउंट सेंड करना पड़ता है. तो इतने कम अमाउंट से उसे 6 जनों की फैमिली भी चलानी है, एट द सेम टाइम घर पे पेरेंट्स को भी पैसे भेजने हैं. अब उनकी जो वाइफ है, शी यूज्ड टू अर्न 800 रुपीज. वो लोगों के घरों में जाके काम करती है. शी यूज्ड टू अर्न 800. जो बड़ा बेटा है वो टी स्टॉल पे काम करता है, तो वहाँ पे उसे भी 300 रुपीज. इस तरीके से फैमिली इनकम हो रही है. जो बेटी है वो छोटे बच्चे का घर पर ध्यान रखती है और घर के काम करती है. तो नो चिल्ड्रन वेंट्स टू स्कूल. कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा. बच्चा या कोई भी घर पे बीमार हो जाता है तो किसी को डॉक्टर के पास ले जाने के भी पैसे उनके पास नहीं होते. बहुत मुश्किल से वो 2 समय का खाना, जो मील्स है, वो अरेंज कर पाते हैं. तो ना उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है. 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है. और जिस तरीके का खाना मिलता है वो उनकी बॉडी के लिए जो है प्रॉपर नहीं है, बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर नहीं है. तो बच्चे जो है अपन कह सकते हैं माल नरिश्ड रह जाते हैं, जिससे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज द अर्बन केस ऑफ राम सरन. दूसरी तरफ अपन डिस्कस करेंगे रूरल केस लाखा सिंह का. तो लाखा सिंह भी की फैमिली में भी 8 पीपल्स हैं. और फादर जो थे वो टीबी की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है. और मदर जो है वो सेम डिजीज टीबी से सफर कर रही है. न फादर का इलाज करवा पाता है, वो ऐसे इसी तरह से उनकी डेथ हो जाती है. और मदर की लाइफ भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि उनको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है.
और जो लाखा सिंह है ये एक लैंडलेस लेबरर है, दूसरे के खेतों में, लैंड लॉर्ड्स के खेतों में काम करके डेली के 50 रुपीज अर्न करता है, वो भी तब जब रोज काम मिल जाए। और काफी बार 50 रुपीज भी नहीं मिलते, जो लैंड ओनर है वो उसको कभी दाल, कभी चावल, कुछ और फ्रूट्स वेजिटेबल देख के जो है काम चलता है उनका। और जो वाइफ है वो पूरा दिन घर के कामों में टाइम स्पेंड कर रही है। और सेम सिचुएशन है, गांव में प्राइमरी स्कूल होते हुए भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि फैमिली इनकम नहीं है। बच्चों के लिए शूज जो एक लग्जरी आइटम है, ना बच्चों के लिए जूते पहनने के लिए है, ना उनके पास साबुन है नहाने के लिए साबुन, एक सोप भी उनके लिए क्या है, लग्जूरियस आइटम है। तो इतनी बुरी कंडीशन है, उनको 2 वक्त का जो है 2 टाइम्स मील भी उन रूरल केस में पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली दो स्टोरीज के थ्रू जो आपको समझाने की कोशिश की गई है बेटा कि किस लेवल की पॉवर्टी होती है। हम जब इमेजिन करते हैं तो हम बेगर्स, चाइल्ड लेबर्स और ये इमेजिन करते हैं पॉवर्टी सिनेरियो। इन दो स्टोरीज के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश की गई है कि क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण हो सकता है पॉवर्टी का। पेज नंबर 30 पे आपका ये पिक्चर के पास में दे रखे हैं। फर्स्ट कॉज दे रखा है लैंडलेसनेस, ठीक है। अगर रूरल केस में देखें तो लाखा सिंह जो था वो लैंड वर्कर था, दूसरे के खेतों में जाके एज ए लेबरर वर्क करता था, उसकी खुद की जमीन नहीं थी। इन केस अगर उसके पास जमीन होती तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके हो सकता है आगे बढ़ सकता, बट लैंडलेसनेस के कारण ही इज पुअर। तो कॉजेज दिए गए बेटा इन दो स्टोरी के बेसिस पे। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज अपन फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट इन 2 स्टोरीज के बेसिस पे ये जो कॉजेज दे रखे हैं। सेकंड दे रखा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने डिस्कस किया कि डेली रूटीन में इन लोगों को जो है वर्क नहीं मिलता है, जो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो है दे आर पुअर। फर्दर साइज ऑफ फैमिलीज, बिग साइज ऑफ फैमिलीज की वजह से दे आर पुअर। अगर यही जो है 4-4 बच्चे न होकर 1 या 2 बच्चा होता, कम रिक्वायरमेंट होती फैमिली की, तो शायद वो एक बच्चे को जो है एजुकेशन देकर आगे बढ़ने में मदद कर सकते, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स फॉर अ नेशन, विदाउट द एजुकेशन अ ह्यूमन बीइंग टर्न्स एज ए लायबिलिटी, दायित्व बन जाता है नेशन का। तो फैमिली साइज बड़ी होने की वजह से जो हो सकता है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। फर्दर अपन देखेंगे पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, और इन सब कारणों की वजह से जो है उनकी हेल्थ क्या है, पुअर हेल्थ है। मीन प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कंजप्शन नहीं हो रहा, तो बॉडी वीक हो रही है। बॉडी वीक हो रही है तो वो फर्दर वर्क नहीं कर रही है। तो गरीबी का एक कारण उनकी पुअर हेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छी होती, प्रॉपर फूड मिलता तो वो और मेहनत करके आगे अर्न कर सकते थे। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। फैमिली में एक और गरीबी का जो है सिनेरियो कॉज देखा गया, चाइल्ड लेबर। अगर चाइल्ड लेबर ना होकर उसको एजुकेट किया जाता तो शायद वो पॉवर्टी से बाहर निकल पाता। फर्दर अपन देखेंगे हेल्पलेसनेस, और कोई भी इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो दीज आर द सिनेरियोज, ये जो अपन ने कंडीशन देखी इन दोनों फैमिलीज में कि किस तरीके की गरीबी वो जी रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्पलेसनेस है, माल नरिशमेंट्स है, इलिटरेसी है। तो ये जो है सारे अपन कह सकते हैं एक तरह से कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। फर्दर जो है पेज 31 में फर्स्ट पैराग्राफ में आपके दे रखे डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। डायमेंशंस में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, किन कारणों से पॉवर्टी होती है, डायमेंशंस किस रूप की पॉवर्टी होती है। मैंने आपको बोला ना कि अगर हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है पुअर पीपल्स की, बेगर्स की, लैंडलेस लेबरर्स की। तो ये सब क्या है, ये फेसेस है, ये डायमेंशंस हैं। तो हम इस पैराग्राफ में ये डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी किन किन फेसेस में, किन किन डायमेंशंस में, किस किस रूप में हमारे सामने आती है। तो व्हाट आर द फेसेस ऑफ डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टीज। डायमेंशंस मींस इंडिकेटर्स भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर्स। पुअर पीपल्स लिव्स अ हंगर लाइफ, मीन्स उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर रहने की जगह नहीं मिलती है। दोनों केसेस में अपन ने देखा था कि एक जो है रेंटेड हाउस में रहता था, दूसरा जो है कच्चे मकान में जो है रहता था। तो पुअर पीपल्स का क्या क्या फेस है, क्या इंडिकेशन है, किस तरीके से पता चलेगा ये गरीब है, कि उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा है, दे लीड अ हंगर लाइफ, एट द सेम टाइम जो है उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है। तो दिस इज द फेस ऑफ इंडिकेटर ऑफ poverty. Second is lack of clean water. They don't have clean water for drinking. Further, lack of regular jobs. उनके पास proper jobs नहीं है. Living with the sense of helplessness. Helplessness है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है. और ill treatment, proper medical facility नहीं है. अगर कोई disease हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उनको proper treatment नहीं मिलता है. और ये सारे जो है faces है poverty का. Further ये दे रखा है बेटा कि what is our chapter poverty as a
चैलेंज। तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ ना बेटा, उस समय से ही जो है ये पावर्टी है ना एक चैलेंज की तरह था। जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों ने भी इस चीज को लेकर काफी कुछ कहा है। जैसे कि महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट दे भी रखा है, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन the poorest of its people become free of human suffering। क्या कहना था महात्मा गांधी का? At the eve of independence जो था हमारे सामने, हम आजाद तो हो गए, बट आजाद हो गए इसका मतलब ये थोड़ा कि हमको अच्छी लाइफ मिलने वाली है। आजादी मिली, एट द सेम टाइम आजादी के साथ हमको क्या मिला? गरीबी मिली, पॉवर्टी मिला। हमारे सामने एक चैलेंज था और महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हमारा देश तभी इंडिपेंडेंट होगा, तभी आजाद माना जाएगा जब हमारे जो पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो जो है उस लेवल से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। जब गरीबी दूर हो जाएगी तभी एक्चुअल मायने में जो है हमारा देश इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या टिल टुडे आवर कंट्री इज हैविंग पॉवर्टी एज ए चैलेंज। एक चैलेंज है कि हम उसको दूर करेंगे बिकॉज अवर नेशन, इफ यू नो, इज डेवलपिंग कंट्री। व्हाई अवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री? बिकॉज वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री। नो डाउट ये रिड्यूस हुई है, हम फर्दर अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। बट उस समय अगर इंडिपेंडेंट की बात से करें, उस टाइम से बात डिस्कस करें, तो ये एक बड़ा चैलेंज था बेटा हमारे सामने कि जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, लोगों को उस कंडीशन से बाहर नहीं लाएंगे, उस दुख से बाहर नहीं लगाएंगे, तो देश जो है प्रोग्रेस कैसे करेगा। तो दैट्स व्हाई पॉवर्टी इज चैलेंज फॉर अवर नेशन, फॉर एवरी नेशन। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। अपन ने देखा कि पॉवर्टी किस किस रूप में देखने को मिलती है? इल ट्रीटमेंट, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट इन फेसेस में, लैक ऑफ क्लीन वाटर, शेल्टर की कमी, हंगर, ये सारे फेसेस है पॉवर्टी के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो फर्स्ट लेट अस वी डिस्कस दैट हु आर सोशल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो आपको पता ही होगा, साइंटिस्ट कौन? हमारे वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं। जैसे जो जियोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं अपन। ठीक है, और इस तरह से अलग अलग एरिया के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। उसी तरह से जो साइंटिस्ट सोसाइटी के बारे में जो है रिसर्च करते हैं, सोसाइटी के बारे में जो है खोज कर सोसाइटी को, समाज को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, नए नए टेक्निक्स बता के जो है सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उन साइंटिस्ट को बोला जाता है सोशल साइंटिस्ट। तो अब हम बताएंगे, देखेंगे कि सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टीज को किस किस रूप में देखा है। तो अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें ना बेटा, पुराने टाइम में सिर्फ दो जो है लेवल्स लेते थे वो लोग, दो क्राइटेरिया वो लोग लेते थे, इनकम और कंजप्शन। तो इन ओल्ड टाइम्स सोशल साइंटिस्ट यूज्ड टू टेक टू क्राइटेरिया, इनकम एंड कंजप्शन। कैसे पता चलेगा कि इंसान गरीब है या अमीर है या मिडिल क्लास है? तो उसकी इनकम को देख के हमें पता चलता था कि वो क्या है, प्लस उसके कंजप्शन लेवल को, कि वो किस तरह की चीजों को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह का खा रहा है, किस तरीके के रह रहा है। कंजप्शन में सब कुछ आ जाएगा। तो उसकी इनकम और उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर पुराने टाइम में सोशल साइंटिस्ट को पता चलता था कि वो इंसान पुअर है कि नहीं है। बट अब जो है सोशल साइंटिस्ट ने इस एरिया को, इस क्राइटेरिया को वाइडन कर दिया है और बहुत सारी दूसरी चीजों को इंक्लूड किया है। जैसे कि हम देखेंगे, हमारी बुक में दे रखा है, सोशल साइंटिस्ट ने लिटरेसी रेट को इंपॉर्टेंस दी है। लिटरेसी रेट को मीन्स अगर पर्सन एजुकेटेड है इट मीन्स ही इज नॉट पुअर, अगर अनएजुकेटेड है मैक्सिमम मेंबर्स फैमिली में मीन्स दे आर पुअर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस। सेकेंड क्राइटेरिया उन्होंने लिया माल नरिश्ड, अगर बॉडी जो है चिल्ड्रंस की या पीपल्स की वीक है, उनका प्रॉपर कंजप्शन नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उनकी बॉडी कमजोर है, तो देन दे आर पुअर। देन है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्दी हेल्थ केयर, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर उसका वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे देन दे आर पुअर। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस, इंडिकेटर्स, क्राइटेरिया है जो आज के मॉडर्न सोशल साइंटिस्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं पॉवर्टी को जज करने के लिए। देन है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, हेल्पलेसनेस है, देन दे आर पुअर। लैक ऑफ क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फर्दर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है उनके पास,
तो वो लोग पुअर है। तो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस टेकन बाय सोशल साइंटिस्ट फॉर जजिंग द पॉवर्टी। नाउ फर्दर दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। So what we are seeing, the different dimensions of poverty by social scientists. So we have already discussed that the old period history, social scientists used to take income and consumption criteria. Then modern scientists used to take other criteria that we have already discussed. What criteria? Literacy rate they used to see. They used to say clean environment, clean water, sanitation and malnutrition. All these things are included by social scientists, modern social scientists. Further, modern social scientists used to take two more criteria for judging the poverty, that is social exclusion and vulnerability. Both are important terms. Now what is social exclusion? When poor have to live in poor surrounding with other poor, excluding from enjoying social equality. यहाँ हम कह सकते हैं समाज से बहिष्कृत कर देना, समाज से निकाल देना। मीन्स बेसिकली हम देखते हैं कि सिटीज में पुअर पीपल वेयर दे यूज्ड टू रिसाइड, चॉल्स, झुग्गी झोपड़ीज, मतलब मेन सोसाइटी, मेन कॉलोनीज, मेन विलेज से हटकर साइड में किसी जगह में रहते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन सोसाइटी, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, मेन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी which are enjoyed by the richer section of the society. So social exclusion, when poor peoples are forced to live in surrounding other than the mainstream of the society, that is called as social exclusion. Now how social scientists take this for judging the poverty? इसमें ये बताया गया है कि सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि ये भी एक कारण है, ये भी एक फेज है पॉवर्टी का। ठीक है, अब सोशल एक्सक्लूजन के बारे में एक और चीज कही गई है, इट कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन दोनों है, कॉज कारण है गरीबी का, एट द सेम टाइम गरीबी का रिजल्ट है, आउटपुट है। कैसे बेटा? कॉज कैसे है? क्योंकि जो पुअर पीपल्स हैं उनको समाज से हटकर, मेन सोसाइटी के बेनिफिट से हटकर रखा जाता है, तो वो उनको जो है कैसे डेवलप करना है, कैसे लोग दूसरे डेवलप कर रहे हैं, उनको मेन सोसाइटी के बेनिफिट्स को यूज करने नहीं दिया जाता है, तो वो मेन सोसाइटी से अलग रह जाते हैं, इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन के कारण वो क्या हो जाते हैं? गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो मेन सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाते। एट द सेम टाइम इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब थे इसीलिए तो उनको बाहर निकाला गया। तो सोशल एक्सक्लूजन के कारण वो गरीब रह जाते हैं। कैसे पुअर रह जाते हैं पुअर पीपल? क्योंकि उनको मेन सोसाइटीज के बेनिफिट्स को, मेन सोसाइटी को समझने का मौका, मेन सोसाइटी की तरह डेवलप होने का मौका नहीं दिया जाता, इसीलिए सोशल एक्सक्लूजन के कारण वो पुअर हो गए। अब ये कॉन्सिक्वेंस है, क्यों? क्योंकि वो गरीब थे तभी उनको सोशली एक्सक्लूड रखा गया। तो सोशल एक्सक्लूजन इज बोथ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन के कारण पॉवर्टी, और पॉवर्टी के कारण ही, पॉवर्टी का रिजल्ट ही सोशल एक्सक्लूजन है। गरीब नहीं होते तो उनको सोशली एक्सक्लूड नहीं किया जाता। समझ में आ रहा बेटा? तो इट इज अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सीरियसली सोचो, समझ में आ जाएगा। गरीब थे तभी उनको जो है समाज से बाहर रखा गया, अगर गरीब नहीं होते तो उनको रखा जाता का? तो इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज पॉवर्टी का रिजल्ट है सोशल एक्सक्लूजन, एज वेल एज सोशल एक्सक्लूजन के कारण पॉवर्टी। ठीक है बेटा? तो ये है सोशल एक्सक्लूजन। तो ये क्राइटेरिया है जो सोशल साइंटिस्ट ने लिया है। फर्दर सोशल साइंटिस्ट ने लिया वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझना बेटा, अपन मैथ्स में पढ़ते प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, तो उसी तरह से वल्नरेबिलिटी मींस ग्रेटर रिस्क और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, या फिर मैंने एक वर्ड दिया है इसको डबल डिजास्टर, डबल चांसेस। ठीक है? अब कैसे? When certain section of society is more prone to certain problem, अगर कुछ सेक्शन ऐसे सोसाइटीज के उनके ज्यादा चांसेस है पुअर रहने के, तो that group is called as vulnerable group, that situation is called as vulnerability। एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको कोरोना का दे देती हूँ। अब जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबके लिए बोला गया कि टेक केयर करने के लिए, पर स्पेशल टेक केयर किसको बोली गई?
चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज पीपल्स को। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होगी वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे कोरोना से। तो स्पेशल ध्यान किसका रखना है? छोटे बच्चों का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। एट द सेम टाइम ओल्ड एज पीपल जो है, एल्डर्स वंस है, उनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है। तो कोरोना ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा? छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को। तो कौन वल्नरेबल है? स्मॉल चिल्ड्रंस। और तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर। हमको भी अफेक्ट कर सकता है बट हमारे प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू दैट। उसी तरह से अर्थक्वेक का एग्जांपल देते हैं। अर्थक्वेक आ गया, घर टूट गए, जो कच्चे मकान है, जो झुग्गी झोपड़ी वो ज्यादा टूटेगी एज कंपेयर टू पक्के मकान। अगर पक्के मकान में टूट गए तो लोगों के पास क्या, बैंक में सेविंग्स है, तो वो उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पर पुअर पीपल्स के पास सेविंग थोड़ी नहीं है, वो उससे ज्यादा अफेक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक के कारण कौन अफेक्टेड होगा? वो लोग होंगे। उसी तरह से हैंडीकैप, विडोज, इनका एग्जांपल दे रखे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो लोग ज्यादा अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मींस ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर रिस्क, डबल डिजास्टर ऑफ बीइंग पुअर। शेड्यूल कास्ट का एग्जांपल दे रखे हैं, दे सकते हैं अपन। ये शेड्यूल कास्ट समाज से एक्सक्लूडेड सोसाइटी। तो अगर देश में कुछ अपन कह सकते हैं डिमोनेटाइजेशन होता है, मनी वैल्यू गिर जाती है, किसी कारण वर्ष कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है, तो ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा? वो लोग होंगे। तो डबल डिजास्टर, आई थिंक ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है। अब लेट अस मूव फर्दर। आज दो चीजें हम और डिस्कस करेंगे, एक पावर्टी लाइन और पावर्टी एस्टिमेट, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ व्हाट इज पावर्टी लाइन? So poverty line we can say beta it is not a line which is actually drawn in between the India। ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई, ये इमेजिनरी लाइन है जो इमेजिन करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है बाय गवर्नमेंट फॉर जजिंग द पीपल ऑफ द कंट्री कि वेदर दे आर पुअर है not। For calculating the poverty level of the country, one standard is fixed, one imaginary line is fixed in the minds कि कौन बंदा जो है पुअर है, यानी देश में कितनी गरीबी है, वो डिसाइड करने के लिए इमेजिनरी लाइन क्रिएट, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। इट इज नॉट एक्चुअली लाइन ड्रॉन। अब ये जो पावर्टी लाइन है ये कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली जो है ऑल द कंट्रीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में इनकम और कंजप्शन लेवल देखा जाता है। मीन्स वेदर द पर्सन इज पुअर और नॉट। फॉर जजिंग दैट थिंग वी यूज टू टेक टू क्राइटेरियाज, इनकम एंड कंजप्शन। कि पर्सन की इनकम क्या है, इमेजिनरी लाइन सेट, एक मिनिमम लेवल अपन सेट कर देते हैं कि अगर इस किसी पर्सन की इनकम इतनी है, कंजप्शन लेवल मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट का अपन एक लिस्ट बना दिए कि एक नॉर्मल इंसान इस कंट्री में अगर रह रहा है तो उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए और उसको जीने के लिए ये चीजें जो है कंजप्शन लेवल होना चाहिए। अगर उस इंसान को वो चीजें मिल रही है, उतना वो अर्न कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, गरीब नहीं है। अगर उतना उस इंसान की इनकम नहीं है और उतना उसको कंजप्शन नहीं मिल रहा है, कंजप्शन किसी भी रूप में हो सकता है बेटा, चाहे फूड है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फुटवेयर्स है, ठीक है, जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, तो वो एक मिनिमम लेवल फिक्स किया जाता है, इमेजिनरी स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। जो लोग, जिन लोगों को ये चीजें मिल रही है वो पुअर नहीं है, पॉवर्टी लाइन से अबव है, और जिन लोगों को ये चीज नहीं मिल रही है वो गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, दे आर कंसीडर्ड एज द पुअर पीपल्स ऑफ द नेशन। अब जो ये पॉवर्टी लाइन है बेटा, ये डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में वो डिफरेंट होती है। ये इमेजिनरी लाइन जो है कि जो स्टैंडर्ड अपन ने सेट किया है वो फिक्स नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ दैट स्टेट, डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ दैट कंट्री, कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। तो उस कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो लेवल, वो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि इस कंट्री के लोग जो है डेवलपमेंट लेवल ये है, तो यहाँ का स्टैंडर्ड ये है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये चीज है। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है यूएसए का, अमेरिका में का और इंडिया का कंपैरिजन दे रखा है कि इंडिया में अगर किसी इंसान के पास कार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। कार होना इंडिया में इज ए लग्जरी थिंग, ठीक है, इट इज नॉट अ नेसेसिटी। पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते समय हम क्या लिखते हैं, नेसेसरी थिंग्स, नॉट अ लग्जरी थिंग्स, कि कार होनी चाहिए, कार नहीं है तो गरीब है, ऐसा नहीं है इंडिया में। बट अमेरिका में अगर कार नहीं है तो उस इंसान को गरीब माना जाता है, क्योंकि इंडिया में कार क्या है, लग्जरी आइटम है, जबकि अमेरिका में जो है वो नॉर्मल थिंग है, क्योंकि वो डेवलप नेशन और हमारा डेवलपिंग कंट्री है। आ रही बात समझ में बेटा? तो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग
एरियाज का जो ये इमेजिनरी लाइन है वो अलग अलग होती है, उस कंट्री के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से सेट की जाती है। ठीक है, अब हम लेंगे पावर्टी लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में पावर्टी लाइन किन चीजों को ध्यान में रखी ली जाती है। तो मैंने बताया इनकम और कंजप्शन लेवल। अब कंजप्शन लेवल में किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो मिनिमम लेवल ऑफ फूड। मिनिमम फूड जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान को मिलना चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, फुटवेयर होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, फ्यूल है, लाइट है, जो बेसिक चीजें जीने के लिए चाहिए वो अगर इंसान के पास है तो वो पुअर नहीं है, वो नहीं है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब इन चीजों को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया कि कंजप्शन का क्राइटेरिया प्लस इनकम, तो इन चीजों को पाने के लिए कितनी इनकम की जरूरत है, तो वो इनकम अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीजों के प्राइस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इनटू रुपीज बाय दिस थिंग्स, तो जो वो कॉस्ट आएगी वो होगा इनकम लेवल पर्टिकुलर पर्सन का। इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि फूड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फूड कैलकुलेट करने के लिए अपन लेते हैं कैलोरीज। क्या लेते हैं, कैलोरीज। ए पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को डेली रूटीन में एक फिक्स कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि वो बॉडी जो है प्रॉपर्ली बिल्ड हो सके, ग्रो कर सके और प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो अगर रूरल केसेस में, ये मैं फूड को बता रही हूँ बेटा कि फूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में। कैलोरीज भी रूरल और अर्बन केसेस में अलग अलग होती है। तो रूरल केस में मतलब विलेज में अगर कोई एक इंसान रह रहा है तो उसको एक दिन की चाहिए 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में, और वही इंसान अगर अर्बन एरिया में रह रहा है तो 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे चाहिए। अब रूरल में ज्यादा क्यों और अर्बन में कम क्यों, क्योंकि रूरल में बेटा ज्यादातर वो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बॉडी का यूज करते हैं काम करने के लिए, whereas we people in urban areas are living in a machinery life, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, हार्ड वर्क कम है, कम शरीर कम करेगा काम तो खाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। आ रही है बात समझ में बेटा। तो ये रूरल एरियाज में पर पर्सन को एक दिन में चाहिए 2400 कैलोरीज और अर्बन एरियाज में चाहिए 2100 कैलोरीज। और अब इन कैलोरीज को अगर अपन प्राइस से मल्टीप्लाई करें, इन रुपीज और इन मॉनेटरी लेवल देखें, तो आपकी बुक में 2011 और 12 आई थिंक सेंसस, हाँ 2011 और 12 मेरे पास जो बुक अभी अवेलेबल है ना बेटा उसमें 2011-12 के सेंसस दे रखे हैं। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग है, प्राइजेस है, पॉलिसीज है, हर 5 ईयर्स में चेंज होती है। तो इकोनॉमिक्स की बुक हर साल नहीं खरीदनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं फैक्ट्स और फिगर्स अकॉर्डिंग विद द चेंजेस विद द टाइम। तो मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें 2011 और 12 के सेंसस दे रखे हैं। अकॉर्डिंगली अगर 2400 कैलोरीज अगर रूरल एरियाज में चाहिए तो रूरल एरिया के बंदे को अर्न करना पड़ेगा 816 रुपीज। कितना अर्न करना पड़ेगा, 816 रुपीज पर मंथ अर्न करना पड़ेगा। यही अगर कोई बंदा अर्बन एरियाज में रह रहा है तो उसे पर मंथ अर्न करना पड़ेगा 1000। अब आप कहोगे मैम कैलोरीज तो यहाँ पे कम चाहिए और इनको अर्न ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ पे कैलोरीज ज्यादा चाहिए और इनको कम अर्न करना पड़ रहा है। तो बेटा प्राइस डिफरेंस, ठीक है, कैसे डिफरेंस के अर्बन एरियाज में कमोडिटीज का प्राइस जो चीज है वो महंगी मिलती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। आगे बस समझ में, तो चाहे इनका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो पर वहाँ पे सस्ती होने की वजह से चीजें जो है वहाँ पे उनको अर्न कम करना पड़ेगा। तो ये अपन ने देखा पर पर्सन। अगर 5 जनों, अपन इमेजिन करते हैं कि रूरल एरिया में जो है 5 जनों की फैमिली है, अर्बन एरिया में 5 जनों की फैमिली है, तो रूरल एरिया में अगर 5 जनों की फैमिली रह रही है तो उनको टोटल अर्न करने पड़ेंगे 4080 रुपीज पर मंथ, और वहीं अर्बन एरियाज में है तो उनको अर्न करने पड़ेंगे 5000। ये प्राइस डिफरेंस की वजह से उनको ज्यादा अर्न करें। ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि इफ इन अ रूरल एरिया 5 मेंबर्स फैमिली इज लिविंग तो दे हैव टू अर्न 4080 रुपीज एंड इन अर्बन एरिया 5000। अगर इससे कम कोई फैमिली अर्न करती है रूरल एरिया में तो दे आर पुअर। ये एक इमेजिनरी लाइन अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड सेट किया गया इंडिया में, ठीक है, 2011 और 12 में। वहीं अर्बन एरियाज में 5000 रुपीज अर्न करने पड़ेंगे 5 मेंबर्स की फैमिली को, तो वो गरीब नहीं है, और अगर इससे कम अर्न करते हैं तो दे आर कंसीडर्ड एज पुअर इन इंडिया। ये फिगर सारे याद करना, ये 1 मार्क्स में आते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी चाहिए, 2400 कैलोरीज, वहां पे 2100
पर पर्सन कितना चाहिए इनकम 816, वहां पे 1000। 5 मेंबर्स की फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए कितने चाहिए 4080 और 5000। तो ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है तो उसके हिसाब से आप लर्न करना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। अब फर्दर अपन ये देखेंगे कि ये सारे फिगर्स और फैक्ट्स और ये जो है ये एवरी 5 इयर्स जो है रिवाइज होते हैं, चेंज होते हैं, क्योंकि प्राइसेस कमोडिटी के चेंज होते हैं, तो हर साल तो पॉसिबल नहीं, हर 5 साल में इन चीजों को रिवाइज किया जाता है, इन फैक्ट्स फिगर्स को इनमें जो है करेक्शंस किए जाते हैं अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये कौन करता है एनएसएसओ। ये सारी स्टडी, ये सर्वे कौन कंडक्ट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कौन कंडक्ट करता है रिगार्डिंग दिस पॉवर्टी लाइन, कौन डिसाइड करता है एनएसएसओ, ठीक है। फर्दर एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये तो चलो इंडिया लेवल पे, अब वर्ल्ड बैंक को तो सबको लेके चलना है, सिर्फ इंडिया को लेके नहीं चलना है। तो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट कर रखा है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है अकॉर्डिंग टू माय बुक $1 पर पर्सन पर डे डिसाइड किया है। ये मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड बैंक का, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। आपके बुक में देख लेना कितने डॉलर दे रखे हैं। तो $1 अगर कोई पर्सन पर डे में अर्न नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वो कंट्री के लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो वर्ल्ड बैंक ऐसे एस्टिमेट करता है, ये अपन ने पढ़ा इंडिया का एग्जांपल। तो दिस इज योर पॉवर्टी लाइन। अब लास्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं पॉवर्टी एस्टिमेट। पॉवर्टी एस्टिमेट में बेटा आप ये टेबल देखेंगे, यहाँ पर ये टेबल दे रखी है आपकी बुक में, इस टेबल के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा रही हूँ पॉवर्टी एस्टिमेट। अब अपन ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेकर आपकी बुक में दे रखा है 1993 और 94 का फिगर, टेबल देखो ईयर, और फिर लास्ट ईयर मेरी बुक में दे रखा 2011 और 12। तो अपन इन ईयर्स के बीच में जज करके ये देखेंगे कि पॉवर्टी हमारे देश में डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो देखो बुक में 1993 और 94 में रूरल एरियाज में 50.1% पॉवर्टी है, परसेंटेज है, रेशियो है, और 31.8 है अर्बन एरियाज में। और टोटल पॉवर्टी सिनेरियो दोनों का मिला के देखा जाए ओवरऑल इंडिया का, तो 44.3% जो है पॉवर्टी थी इंडिया में 93-94 में। और वहीं 2011 और 12 का देखे जाए तो इंडिया में जो है 21.9, मतलब डिक्रीज हुई है पॉवर्टी। ऑन द अदर साइड अगर ये देखो मिलियंस में, ये तो दे रखा है परसेंटेज में, मिलियंस में देखें तो भी अपन देखेंगे कि 93-94 में टोटल पॉवर्टी इंडिया में है 403.7, वहीं 2011 और 12 में जो है टोटल पॉवर्टी इंडिया में है 269.3। तो अल्टीमेटली इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि हाँ पॉवर्टी इंडिया में डिक्रीज हुई है। हम ये मतलब एक प्राउड का है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे सामने, हमारे नेशनल लीडर्स के सामने ये चैलेंज था, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस चैलेंज को ओवरकम करने की वाले पोर्शन में से इसी तरीके से टेबल बना के एग्जाम में आपको जज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नीचे देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं। इवन इफ, लेट्स डिस्कस दे रखा है, इवन इफ पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बिटवीन 93 एंड 94 एंड 2004-5, व्हाई डिड द नंबर ऑफ पुअर रिमेन अबाउट एट 400। मतलब पॉवर्टी रेशियो जो है डिक्लाइन हो रहा है तो भी जो है नंबर ऑफ पुअर जो है 407। मिडिल बात हो रही है बेटा, 1993 और 2004-5 को कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी तो रिड्यूस हो रही है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है। तो जिस स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उस स्पीड में पॉवर्टी डिक्रीज नहीं हुई है। तो ओवरऑल एस्टिमेट देखा जाए तो इंडिपेंडेंस से लेकर आज डेट तक जो है 2011 के जो मेरे पास फिगर है, हर साल 2.2% पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, ओनली 2.2%। 2.2 आपको बोलोगे कि इधर तो टेबल में तो ज्यादा दिखा रहा है, तो टेबल में इसलिए दिखा रहा है बेटा जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी उस स्पीड से गरीबी कम नहीं हुई। तो एस्टिमेट यही है कि एवरी ईयर जो है 2.2% जो है पॉवर्टी डिक्रीज हुई है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास इतनी है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।